Hi guys, so hope all of you are safe and are doing well. Now this is lecture 2 in this series started by CLAT Orbis, where I'll be delivering a few lectures in the subject of quantitative aptitude and data interpretation. Now the topic that I have chosen for today's lecture is ratio and proportion and mixtures and allegations. Now the reason why I have combined both these topics is I feel that the concepts of one can be used very easily to solve the problems of the other. तो जैसे कई सवाल होते हैं मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के जिनको आप कंफर्टेबली रेशियो के कॉन्सेप्ट्स यूज करके सॉल्व कर सकते हैं and that is the reason why I'm going to be teaching you ratio and proportion and mixtures and allegations together. All right, so now I'm sharing a screen here, the PPT that I prepared for you guys, so that you could understand this topic better. Now, wait. Okay. So here, starting with the concept, now we know ratio is the comparison of two quantities of same kind but in an abstract form. Now the reason why I'm saying that this is in an abstract form because इसका कोई unit नहीं होता है measurement का. मतलब जैसे कोई ratio है 1:2, तो ये कुछ भी हो सकता है. अगर हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो हो सकता है ग्राम्स या किलोग्राम्स में हो. अगर मनी मेजर हो रहा है तो इसका यूनिट रुपीज हो जाएगा, या फिर और कोई चीज मेजर कर रहे हैं तो उस चीज का यूनिट इसमें आ जाएगा. ऑलराइट, तो मतलब हम दो क्वांटिटीज का एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में नंबर्स के थ्रू कंपैरिजन करते हैं एंड इट डज नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट. एक्सक्यूज मी, सो दैट इज कॉल्ड एज रेशियो. Now comparison of two ratios is known as proportion. मतलब अगर हम दो ratios को compare कर रहे हैं, उनको equate कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? Proportion. Now coming to equivalent ratios. Equivalent ratios क्या होते हैं? किसी भी ratio का reduced या simplified form equivalent ratio होगा. अब आपको ये property ratio की पता होगी, जैसे 1:2 है, तो यानी ये left side है and this is the right hand side. So we can easily multiply this left hand side, let's say by a number x, and we can multiply the same, we can multiply the right side by the same value, let's say x only. So the resultant will be the equivalent ratios. मतलब you can multiply by the same number, divide by the same number, but on both sides you have to do that. And the result that you will get, they are all equivalent ratios. मतलब सारे ratios are same only in effect. ठीक है? So for example, what I have given here is 1:2. इसको हमने दोनों साइड 2 में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2:4. ठीक है, सिंपली इसको अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:8, then again multiplied by 2 we get 8:16. So all these ratios are same only and therefore they are known as equivalent ratios. Now coming to properties, ratios can also be expressed in the form of fraction. इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, और अदर प्रॉपर्टीज आर डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन. नाउ एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? जब किसी भी रेशियो की लेट्स से 2:3 है, इसकी दोनों साइड्स इंक्रीज करें, मतलब अगर हम लेफ्ट साइड को इंक्रीज करें तो राइट भी इंक्रीज हो, लेफ्ट को अगर हम डिक्रीज करें तो राइट साइड भी डिक्रीज हो. Means whatever change is made on one side is reflected on the other side in the same direction, वो होता है डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है टाइम एंड डिस्टेंस. कैसे? जैसे मैं बोलूं कि आई कैन ट्रैवल लेट्स से 40 किलोमीटर्स 2 घंटे में. ठीक है, 40 किलोमीटर 2 घंटे में, तो मेरा ये रेशियो आ गया डिस्टेंस और टाइम का. अब अगर मैं इसको इंक्रीज करूं 2 से 3 घंटा करूं तो मेरा ये जो ट्रैवल वाला चीज है, डिस्टेंस है, ये भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, सो दैट्स द डायरेक्ट वेरिएशन थिंग. नाउ ऑपोजिट टू दिस इनवर्स वेरिएशन वो होता है जब यहाँ वाला चीज ज्यादा हो तो दूसरी जगह पे कम हो, यानी जब एक वैल्यू में इंक्रीज होता है दूसरी में डिक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, Another concept is of continued proportion. अगर मैं बोलूं कि A, B, C, D are in continued proportion, उसका मतलब क्या होता है?
It means that A is to B is equal to B is to C and that is equal to C is to D. यानी सारे रेशियोज जो हैं वो एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। नाउ रेशियोज ऑफ फ्रैक्शंस का हम कैसे देख सकते हैं? लेट्स से A है यहाँ पे and B है this, so A is to B का ratio is given 5:6. Now if I have to reflect this in the form of fraction, हम क्या करेंगे, इनका सम ले लेंगे। 6 plus 5 क्या होता है? 11. So A की वैल्यू क्या होगी इन फ्रैक्शंस? 5 अपॉन इन दोनों का सम which is 11. Similarly B की वैल्यू क्या होगी? 6 अपॉन इन दोनों का सम which is 11. So this is how you can easily represent these in the form of fractions. ठीक है? Now how can we solve this? Now let's say here an example is given that the income of Ravi and Sushil are in the ratio of 5:9. Now if the difference between their income is 160, find the income of Sushil. Now if you remember from your class 7th and 8th के school teaching say, कि how do we solve these problems? We just make equations in the form of x and then फिर हम उसको solve कर देते हैं। So for instance, let's say हमने रवि और सुशील की इनकम मान ली 5, 6 और 9x, sorry 5x and 9x. Now since question में हमें डिफरेंस दिया हुआ है तो हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया। 9x minus 5x डिफरेंस क्या हो गया? 160. ठीक है, तो 4x हमारा आ गया 160, तो x हमारा आ गया 160/4 यानी 40. ठीक है, सो नाउ इनकम ऑफ सुशील पूछी गई है बिकॉज क्वेश्चन में, तो इनकम ऑफ सुशील क्या थी? हमने 9x माना था, तो 9x यानी कि 9 into 40 which is 360. ठीक है, so this is how traditionally you solve the ratio problems by forming equations in the form of x and then solving them. But हम कैसे करेंगे? We'll use the unitary method like I taught you in the percentage lecture. If you remember from that, I gave an example that let's say 40% is something, तो हमें 100% कैसे निकालना होगा? Simply 40% अगर हमें x दिया है तो 1% कितना हो जाएगा? It will be x by 40. और 100% के लिए हम क्या करेंगे? उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिटरी मेथड का होता है मतलब कि बेसिकली आप 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। तो फॉर इंस्टेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, दोनों की इनकम दी है और डिफरेंस दिया है और हमें सुशील की इनकम निकालनी है। सो द रेशियो दैट इज गिवन इज 5:9. नाउ डिफरेंस सिंस क्वेश्चन में दिया है तो वी जस्ट टेक आउट द डिफरेंस ऑफ द रेशियो। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ द रेशियो क्या है? 5 और 9 का डिफरेंस क्या है? 4. तो यानी जो 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स या 4 यूनिट्स कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 160. 160 कहाँ से आया? क्वेश्चन में क्योंकि डिफरेंस दिया था। ठीक है, तो 4 पार्ट्स इज इक्वल टू 160. तो 1 पार्ट कितना होगा? 1 पार्ट हो जाएगा 40. हाउ? 160 यू डिवाइड बाय 4, इट बिकम्स 40. एंड हमें 9 पार्ट्स निकालना है। 9 पार्ट्स क्यों निकालना है? क्योंकि सुशील की इनकम पूछी और सुशील की इनकम है 9. तो 9 पार्ट क्या होगा? 40 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी गेट द आंसर एज 360. ऑलराइट, सो मैंने कुछ यहाँ पे नया नहीं बताया है, ना ही कुछ चेंज किया है. ऑल आई एम सेइंग इज दैट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ x जैसे इस इक्वेशन में हमने किया, यू जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड पार्ट्स. तो उससे क्या होता है? आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपली आप पार्ट्स में निकाल लेते हैं, उसके बाद एक पार्ट की वैल्यू निकालते हैं और फिर जितना पूछा गया है उतने पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो इससे जो क्वेश्चन है वो काफी जल्दी सॉल्व हो जाता है एज कंपेयर टू व्हेन यू आर फॉर्मिंग इक्वेशंस एंड सॉल्विंग देम वन बाय वन. ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल हियर. Here it says that the ratio of boys and girls in a class is 6:7. All right. Now, if the total number of students are 390, then we need to find the number of girls. ठीक है. अब यहाँ पे क्या दिया है? जैसे उस केस में हमको दिया था डिफरेंस, यहाँ हमको टोटल नंबर दिया है. ठीक है, तो टोटल नंबर में अब हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. तो 7 + 6 कितना होता है? 13. यानी कि 13 पार्ट हमें कितना दिया है? ये 390 दिया है. तो 13 पार्ट्स इज इक्वल टू 390. 1 पार्ट कितना हो जाएगा? 390.
you divide by 13. So 13 3 is 39 and 30. So one part is 30 and 7 parts कितना हो जाएगा? 7 parts will be 30 into 7, that is 210. ठीक है? Why did we take out 7 parts? Because हमसे girls पूछा गया है and girls का ratio if you see it's 7. So 7 parts is 30 into 7, that is 210. Now moving on, let's take another example. Here it says that the ratio of seats in some exam is 5:4:3:2 for general, OBC, SC and ST categories. If the seats for SC is 1000 more than the seats for ST, find the number of seats in the general category. Same kind of problem है, but हमने 2 की जगह 4 variables ले लिया यहाँ पे. ठीक है, 4 categories हैं. So इसमें write the ratio 5:4:3:2. Now you see SC और ST का डिफरेंस दिया हुआ है. ठीक है, अब इस रेशियो में SC क्या है 3 और ST यहाँ पे क्या है 2. So the difference between SC and ST is 1 as per the ratio, यानी 1 part. ठीक है, but here question में कितना दिया है ये डिफरेंस 1000. इसका मतलब क्या हुआ 1 part, sorry this will be part, 1 part is equal to 1000. तो इसका मतलब 5 पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 5 पार्ट्स क्यों? क्योंकि जनरल पूछा है और जनरल के पार्ट्स कितने हैं? 5. So 5 parts will become 5 into 1000, that means 5000. So there are 5000 seats in the general category. All right. Now another concept in ratios only is the concept of combined ratios. So combined ratios क्या होते हैं? जैसे हमें 2 ratios दिए होते हैं लेकिन उनमें एक कॉमन होता है. For instance, here is given A:B is 4:5 and B:C is 6:7. And what do we need to find? We need to find A:B:C. All right. Now B इसमें common factor है जो हमें given है, तो हम उसको बीच में लिख लेंगे. जो भी common होगा we write it in the center. Then A हमने यहाँ पे लिख लिया and C we have written here. Now solve कैसे करेंगे? Simple. A B C है तो A और B का रेशियो कितना है 4 और 5. एक रो में हमने लिख लिया 4 और 5. फिर B और C का रेशियो कितना है 6 और 7. तो नेक्स्ट रो में उसके नीचे हमने लिख दिया B और C के नीचे 6 and 7. Now what do we need to do? We need to do a diagonal multiplication here. तो 4 का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6 से and we write it here. 5 का फिर से हम 6 से करेंगे, we write it here. And then 5 multiplied by 7, we write it here. So another way to remember this is you see multiplication n form में हो रहा है. This and this. So it's in the form of a shape of n. So simple सी चीज है, एक दूसरे के नीचे ये नंबर है, like this number is right above 6 and like they are just very adjacent to each other. ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये जो ऊपर नीचे है इनको मल्टीप्लाई किया, फिर ऊपर वाले नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, सो हियर वी गेट 6 into 4 24, 5 into 6 30 and 5 into 7 35. So your combined ratio will be 24:30:35. We'll do one more example in this topic only. Where we have just increased the variable again. A:B हमें given है, B:C given है and C:D given है. हमें रेशियो किसका निकालना है? A:B:C:D का. अब हमें अगर 2 दिए होते like this ratio and this ratio, we could have found A:B:C. ठीक है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे. हमने A B C लिख लिया, A और B के नीचे 1 and 2 लिखा, B और C के नीचे 3 and 4 लिखा. Now what do? We do cross multiplication. So 1 into 3 कितना आ गया? यहाँ पे 3. 2 into 3 कितना आ गया? 6. And 2 into 4 here comes 8. So the combined ratio of A is to B is to C becomes 3:6:8. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास A B C यहाँ पे है और लास्ट वाला C:D बचा था, तो यानी C कॉमन है, तो C के नीचे हम लिख लेंगे 4 and 5 because the ratio given is 4:5. Now what do? We do the diagonal multiplication again. तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 से करके
हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट प्लेस पे। 6 का मल्टीप्लीकेशन 4 से करके विल राइट इट हियर। 8 into 4 उसके नीचे लिख देंगे। at 8 into 5 we'll write it here. So again सेम चीज है, डायगनली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ये ऊपर नीचे वाले मल्टीप्लाई एंड देन डायगनल अगेन, ठीक है। So the answer becomes 3 into 4 it's 12, 6 into 4 is 24, 8 4s are 32 and 8 5s are 40. Then you reduce this, so this becomes 3 is to 6 is to 8 is to 10. All right, so I hope combined ratios are clear. Now again this is very basic, but I thought I'll just discuss it once in case you need a revision or you need to brush up on this concept. So if the ratios between A, B and C they are given in the form of fraction, ठीक है, हमें रेशियो निकालना है होल नंबर्स में। अब question won't be this easy that they're gonna ask you to calculate the whole ratio in whole numbers. Instead कभी ऐसा होगा कि इस रेशियो के आगे और कुछ उन्होंने पूछा होगा, and to calculate that it will be easy अगर आपको रेशियो होल नंबर में पता हो, ठीक है। तो इसलिए फ्रैक्शन से हम कैसे कन्वर्ट करते हैं रेशियो को होल नंबर में, दैट आई एम डिस्कसिंग इट हियर। सो इट्स वेरी सिंपल, सिंपली ए बी सी डी हमने लिखा यहाँ पे, दिस इज 2/3, दिस इज 1/6, दिस इज 4/7 एंड दिस इज 6/7, ठीक है। नाउ वी मल्टीप्लाई इट बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सो बेसिकली हमें इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम उन सबको कैंसिल कर सकते हैं, और जो न्यूमरेटर आएगा that will become the ratio, ठीक है। So we need to find the LCM of denominators. Now यहाँ पे denominators क्या है, there is 3, we have 6, we have 7. So the LCM becomes 42. All right. So now here again 2/3 into 42, 1/6 into 42, 4/7 into 42, 6/7 into 42. हमने multiply क्यों किया है, so that the denominator disappears and we are only left with the whole number. So again इसको solve करने पे we get 28 here, 7 here, 24 here and 36 here. So this becomes your combined ratio in the form of whole numbers. I hope it's clear till here. Now we are going to do some practice questions. So first question is, two numbers are 20% and 70% more than a third number respectively. Find the ratios of the two numbers. Now again if you remember from my first lecture I told you जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में वैल्यूज ना दी हो, अब थर्ड नंबर हमें नहीं पता है, सिंपली आप इसको अज्यूम करो, क्या अज्यूम करोगे 100, ठीक है। तो हमने थर्ड नंबर को अज्यूम कर लिया 100 है। अब हमें क्या करना है, अब द क्वेश्चन सेज दे आर 20% मोर देन दिस, तो हम इसमें 20% अगर लें मोर देन दिस तो द नंबर बिकम्स 120 एंड दिस इज 70% मोर देन दिस, 70% more than this क्या हो जाएगा, 70% of 100 is 70, we add it, the number becomes 170. और हमसे रेशियो पूछा है दोनों नंबर्स का, दोनों नंबर्स का रेशियो क्या हो जाएगा 120 is to 170, और if we cancel the zeros this becomes 12 is to 70. So 12 is to 70, C is your answer in this question. Now okay, this is an example of a data interpretation question in the under the topic of ratios. So here again something important, I'll just repeat it here, I also said it during my percentage lecture. You really need to read this questions के body, जो main body होती है जिसके अंदर 5-6 questions होते हैं, ठीक है। You need to read this really carefully. Why? Because you want to find important details. अब ये important details क्या हो सकते हैं, हो सकता है कोई value दी हो या कुछ और दिया हो, ठीक है। Why is it important? It is important because ये जो डिटेल है, जो वैल्यू है, ये आने वाले 4-5 क्वेश्चंस में यूज होगी और उसमें सेम रहेगी, ठीक है। तो अगर सेम रहेगी और आपने उसको नहीं नोटिस किया शुरू में, तो हो सकता है कि आपके आने वाले सारे क्वेश्चंस उसमें जितने भी होंगे उसमें उस सेट में, वो हो सकता है गलत हो जाए। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि ये जो बॉडी है इसको आप अच्छे से पढ़ें, जो भी डेटा दिया है, लाइक स्पेंड सम टाइम टू रीड इट केयरफुली so that you know कि हाँ, and paper is online so of course you can't mark it, but again keep it in mind कि अच्छा ठीक है इसमें ये दिया है, you will have to use this in the upcoming questions, ठीक है। So here let's read the question. It says Jai Mahakal Dairies is a collection center for milk, is a collection center that for milk that collects the milk from farmers and further sells it to Amul. All right,
However, it mixes a certain amount of water in the milk depending upon the quality received from the farmers. ठीक है? So the following table provides details of the same. Now study the table and answer the questions that follow. बेसिकली टेबल में ये दिया है उन्होंने, ये फार्मर्स के नाम है, ये लोग मिल्क लाते हैं जेएमडी तक और फिर जेएमडी उसमें थोड़ा पानी मिलाता है एंड देन इट फर्दर सेल्स टू अमूल. ठीक है. नाउ द फैट कंटेंट जो ये लोग लाते हैं वो है इतना दिया हुआ है और जितना पानी जेएमडी मिलाता है वो परसेंटेज में हमें दिया हुआ है. ठीक है. अब अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई टैबुलर फॉर्म में आपको डेटा दिया होता है, you have to ensure that you notice कि किस यूनिट में दिया है डेटा. यहाँ पे तो चलो परसेंटेज है सेम था, बट कभी हो सकता है इट माइट बी गिवन इन ग्राम्स बट दूसरे वाले कॉलम में वो केजीज में दिया होगा. तो फिर आपको एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा ताकि आंसर आपका सही आए. ठीक है. इसीलिए या लीटर्स और मिलीलीटर्स में दिया जा सकता है. इसलिए प्लीज लाइक आई एम रियली एम्फसाइजिंग ऑन दिस, please make sure that you see कि किस unit में data is given. This is really important for the questions of DI. Alright, now let's try and solve this question. It says here, if Rakesh brings 70 liters of milk to the dairy, what shall be the ratio of milk and water in that milk when sent to Amul? ठीक है, मतलब ये जो राकेश है यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है, he is bringing 70 liters, तो हमें ये पता लगाना है JMD उसमें कितना पानी मिलाएगा and then what will be the ratio. Now, if we can see from this table, the amount or the quantity of water that's given here is 8%. So basically, we need to calculate 8% of 70. अब 8% हम कैसे calculate करेंगे? Now again, if you remember from my first lecture, 10% इसका क्या हो जाएगा? 7. 1% क्या हो जाएगा? 0.7. तो excuse me, तो 8% कितना होगा? 0.7 into 8. यानी 0.7 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So what does this become? This become 8 7s are 56, 5.6. यानी JMD will mix 5.6 liters of water in 70 liters of milk. तो रेशियो क्या हो जाएगा? अब अगेन एक और चीज ध्यान में रखने वाली है कि रेशियो किसका पूछा गया है. You should really read that carefully. Like here it says what shall be the ratio of milk and water. अगर water and milk दिया होता तो आंसर आपका उल्टा होता, बट मिल्क एंड वाटर है तो हम 70 पहले लिखेंगे और 5.6 बाद में लिखेंगे. ठीक है. तो रेशियो के क्वेश्चंस में जो भी कैटेगरी पूछी गई है उसका ऑर्डर यू नीड टू कीप इन माइंड कि क्या पहले पूछा है क्या बाद में. अगर आप उल्टा उसको पढ़ लोगे देन द आंसर विल जस्ट गो रॉन्ग. ऑलराइट. So here again it has asked ratio of milk and water. Milk is 70, water is 5.6 that we calculated. So ratio becomes 70 is to 5.6. Again, you can solve it by reducing it, dividing it, whatever. I'll just remove the decimal here and make it 700. So I'll just divide it by 7 then. This becomes 100 is to 8. 7 8 is 56. Then again 2 से divide कर दो, 50 is to 4 हो जाएगा. फिर से 2 से क्या तो 25 is to 2 हो जाएगा. Your answer here will become 25 is to 2. That is B option. Alright. Now again, another question in the same category. Here it says that if the fat content in the milk brought by Devesh, we have Devesh here, is 520, find the ratio of water and milk in the mixture obtained after adding requisite water. यानी हमें फैट कंटेंट पता है कि कितना है उसके मिल्क में. We need to find के water कितना mix होगा and the ratio. Again, here you can see कि fat content यहाँ पे कितना दिया गया है 5.2% और इसके मिल्क में कितना है 520. यानी मतलब क्या है 5.2 is equals to 520. ये हमने कैसे निकाला? Again, if you see percentage में fat content कितना दिया है 5.2, बट यहाँ क्वांटिटी में कितना दिया है 520. तो यानी 5.2% is equal to 520. 1% कितना हो जाएगा? You divide 520 by 5.2. All right. If I remove this decimal here, I add a 0. So this becomes 100. So 1% is 100. हमें निकालना कितना है 100%, क्योंकि टोटल मिल्क का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 100%. So 100% क्या होगा? We'll just add 2 zeros in 100 only here. ठीक है. So the final answer comes 10,000. Now
10,000 is the milk, 10,000 liters is the milk that Devesh is bringing. All right. Now we need to find the ratio of water and milk. अब पानी उसमें हम कितना मिलाएंगे, JMD 20%, तो हम सिंपली इसका 20% कैलकुलेट कर लेंगे. Now again 10% क्या होगा इसका 1000, so 20% कितना हो जाएगा 2000. So the amount of water mixed by JMD will be 2000 in this case. ठीक है. Now again ratio is asked of water and milk. Now यहाँ पे you see it's उल्टा, water first है milk बाद में. So water का ratio is 2000 and milk was 10,000. Okay, this is 10,000. We cancel the extra zeros here. This becomes 2:10. That is 1:5. So 1:5. A is your answer. All right. Now we move on to the concept of mixtures and alligations. Now here I have completed ratio and proportions. All the important things, important formulas, concepts, tricks that you need to keep in mind. And we'll start with mixtures and alligations. Okay. Now, first coming to the concept. So again, mixture क्या होता है? Very simple. जब दो या दो से ज़्यादा items will mix in a certain ratio in certain quantities, the resultant that we'll get is called a mixture or a solution in cases where it is liquid. ठीक है. Now alligation क्या होता है? Alligation का literal meaning होता है link करना. ठीक है. It's called link. Now I'll explain later when you see that diagram. You'll know कि link क्या होता है, because we tend to link इधर उधर के जो prices होते हैं और जो main price होता है, we link those. So basically let's say जब दो चीजों को हम mix कर रहे हैं, दो चीजों का एक different price है, different quality है, उनको हमने mix करके एक quality बनाया. तो अगर हमें उसमें एक desired level of quality चाहिए या desired level of price चाहिए उस mixture का, उस केस में rule of alligation comes handy. अब दो चीजों में ये यूज हो सकता है, या तो ये रेशियो आपको फाइंड करने में इट कैन हेल्प यू, और यू कैन आल्सो फाइंड द प्राइस जो आपको चाहिए इन केस अगर रेशियो गिवन है. ठीक है. सो यू विल अंडरस्टैंड एलिगेशन इन द अपकमिंग स्लाइड्स लेटर. नाउ हियर लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ओके, वन मोर थिंग हियर. When it comes to questions of ratio and proportion or even of mixtures, you can see that the percentage formulas concept can be used anywhere. So I mentioned in the intro of my percentage lecture as well कि काफी सारे सवाल और topics के आप percentage के concept use करके solve कर सकते हैं. So similarly, like you have to gauge from the question, अच्छा अगर यहाँ percentage given है, can I just use that formula and solve the question? If you can, very good. I mean, why to remember so many formulas जब एक concept से हमारे almost सारे questions solve हो जाते हैं. ठीक है. So one example I've given here. Let's say नींबू पानी drink है of 3 liters. It contains 60% lemon juice. All right. 1 liter of water is added to this solution. What shall be the percentage of lemon juice in the new solution? अब हमें पता है कि 3 लीटर में 60% lemon juice है. 3 लीटर कितना हो जाएगा? 3000 ml. ठीक है. 3000 ml में अगर 60% लेमन जूस है, तो 3000 का 60% कितना हुआ? 10% है. 300 into 6 कर दो, 1800 becomes 60%, यानी 1800 ml is the lemon juice का कंटेंट. एंड पानी का कंटेंट कितना होगा? माइनस कर दो 3000 से, 1200 ml. ठीक है. नाउ what are we doing is we are adding 1 liter of water. So the total liquid जो थी 3 liters, it now becomes what? 4 liters. Why? Because we have added 1 liters of water. So this becomes 4000 ml. All right. Now अब हमें निकालना क्या है? Lemon juice का percentage. Lemon पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा here. So this what do we need to find is 1800 जो है वो 4000 का कितना परसेंट है. ठीक है. So here it says it's 1800 and this is 4000. Now again two ways of finding this. एक तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर आप निकाल सकते हैं परसेंटेज के मेथड से. नहीं कंफर्टेबल है तो यू कैन सिंपली 1800 अपॉन 4000 इंटू 100. इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. वैसे नहीं सॉल्व करना है तो आई वुड लाइक टू डू, हाउ आई वुड डू इज हियर दिस 4000 है तो इसका 10% कितना होगा? 400. यानी हमें 1800 तक पहुंचना है तो 400 इंटू 4 आई डू, तो हमें कितना मिल गया? 1600 ml. ठीक है.
So this was 1600 was 40%. Now here again 10% is हमें और कितना चाहिए 200. Now if you see carefully 10% is 400, तो 5% कितना होगा 5% हो जाएगा 200. So 200 इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमें अपना 1800 मिल गया और यहाँ पे हमने क्या ऐड किया 5%. तो 40 plus 5 यानी आंसर विल बी A 45%. ठीक है. So this was about this question. Now coming to the rule of alligation, जो मैंने पहले अभी डिस्कस किया था उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है. ठीक है. तो लेट्स से जो चीपर इंग्रेडिएंट होता है उसका कॉस्ट प्राइस वी राइट ऑन द लेफ्ट, जो महंगा वाला होता है उसको वी राइट ऑन द राइट, बीच में हम लिखते हैं इसका मीन प्राइस. ठीक है. फिर यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो हम इन दोनों को माइनस करते हैं और जो यहाँ पे आता है वी सबट्रैक्ट दिस एंड वी गेट द रेशियो. You can use this formula if you want, but I'll tell you how you can do it without formula as well, if you understand the concept. Now, इसमें काफी तरह के questions पूछे जा सकते हैं. Type 1 is where the ratio has been asked. ठीक है. Now, अब जैसे यहाँ पे है, the question is, in what proportion should beans worth rupees 5.6 kg and rupees 6.4 per kg be mixed so as to give a mean price of 6.2? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमारे पास दो क्वालिटी की बीन्स हैं. एक का कॉस्ट है रुपीज 5.6 पर केजी, दूसरे का कॉस्ट है रुपीज 6.4 पर केजी. ठीक है. तो अब हमें निकालना है, इन दोनों को मिक्स करना है एक ऐसे प्रोपोर्शन में कि हमारा जो मीन प्राइस आ जाए इन दोनों का 6.2. एंड यू नो मीन और द एवरेज विल ऑलवेज बी बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स. ठीक है. सो अगेन एज आई टोल्ड यू, हाउ डू वी स्टार्ट? जो सस्ता वाला आइटम होता है वी राइट इट ऑन द लेफ्ट. ठीक है. द महंगा वाला आइटम दैट इज द डियरर प्राइस इज रिटन ऑन द राइट. बीच में वी राइट द मीन प्राइस. हाउ डू वी सॉल्व इट? हम इसको डायगोनली सबट्रैक्ट कर देते हैं. सो हियर इफ यू सबट्रैक्ट 6.2 फ्रॉम 6.4 you get 0.2, and in this case if you subtract 5.6 from 6.2 you get 0.6. यानी आंसर क्या होगा हमारा 2:6 डेसिमल हटा के, and if you solve it further the answer becomes 1:3. So you need to mix this in the ratio of 1 and this kind of beans in the ratio of 3 so as to get the desired price on the resultant mixture. All right, so this was about this. Again, let's solve another question. Let's see if the concepts are clear enough. A goldsmith has a gold of 16 carat and 24 carat. What's the ratio in which he should mix both kinds of gold so as to get 22 carat of gold? Now again, how are we going to solve this? We just take 16 carat on the left side, 24 carat on the right side because this is cheaper, this is dearer. We write the mean price in between. अब हम इन दोनों को subtract कर देंगे. तो 24 में से 22 गया, कितना बचा 2. 16 में से 22 गया, कितना बचा, I mean 22 में से 16 गया, it's always going to be in positive. तो ये कितना बचा 6. तो रेशियो क्या आ गया आपका 2:6 और 1:3. ठीक है. So your answer will be A 1:3. Now next question. Again same kind of question but एक additional twist है इसमें. A shopkeeper has rice of two qualities. One costs him rupees 40 per kg and the other costs him rupees 55 per kg. Now in what ratios should he mix the two so that he gains 25% by selling the mixture at rupees 65 per kg? मतलब हमें यहाँ मेन प्राइस ना देके इन्होंने ऐसा प्राइस दिया है जिसपे ये बोल रहे हैं कि हमारा 25% प्रॉफिट भी हो रहा है. ठीक है. अब हमें सबसे पहले तो इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा. तो हियर इफ यू नो, अगेन हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स अज्यूम अगर हमारा कॉस्ट प्राइस होता 100 और उसमें प्रॉफिट होता हमारा 25% का. ठीक है. तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाता? सेलिंग प्राइस बन जाता 125. ऑलराइट. नाउ अब सो बेसिकली 125% आ गया हमारा सेलिंग प्राइस which is equals to 65. ठीक है. So now we need to find कितना 100% because 100 हमारा क्या था कॉस्ट प्राइस. तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 65 को 125 से डिवाइड करेंगे
and then we'll multiply it by 100. ठीक है? So this is how you can solve this. Another way of solving it is, if you remember again from my percentage lecture, that the concept of base effect. ठीक है? अब बेस इफेक्ट क्या था? अगर इतना परसेंट बढ़ेगा तो वापस सेम नंबर के आने के लिए कितना परसेंट कम करना पड़ेगा. सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बेस इफेक्ट इज दिस प्रॉफिट एंड लॉस वाली सिचुएशंस ओनली. सो हियर यू नो गेन कितना हुआ है? 25%. तो जब 25% किसी भी वैल्यू में बढ़ता है तो हमें सेम नंबर पे आने के लिए उसमें 20% कम करना पड़ता है. ठीक है? तो सिंपली हम इसमें 20% कम कर देंगे. अब इसका 20% क्या होगा? 10% होगा 6.5. तो into 2 यानी 13. 6.5 into 2 will be 13. So you just subtract 13 from this and you'll get your cost price, which is 52. So now you have the mean price and बाकी प्रॉब्लम तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, just like we did in the last questions. So for example यहाँ पे था 40 cheaper price, here we write 55 dearer price, बीच में we write 52 जो हमारा ये mean price आया है. ठीक है? Now we'll just subtract this. So 55 और 52 का difference is 3 and 40 and 52 का difference is 12. So the ratio becomes 3:12 or 1:4. ठीक है? Easy enough. Alright. Now we'll do second kind of questions in this, जिसमें ratio ना पूछ के quantity पूछते हैं. मतलब रेशियो तो हम निकालेंगे ही, उन्होंने क्वांटिटी भी पूछ लिया कि अच्छा इतने रेशियोज में तो मिक्स किया, लेकिन अगर हमने एक को इस क्वांटिटी में यूज किया तो दूसरे को हम किस क्वांटिटी में यूज करेंगे. ठीक है? सो हियर लेट्स से इट सेज द क्वेश्चन रीड्स एज फॉलोज. हाउ मच राइस एट रुपीज 9.5 per kg must be added to 10 kgs of rice at rupees 20 per kg so that the resultant mixture is worth 13 per kg. Again, what do we do? 9.5 we write here, 20 we're gonna write on the right side. बीच में mean price है जो हमें 13 दिया हुआ है. Again, इन दोनों का difference कर लो तो कितना आ रहा है? 20 minus 13, 7. And here 13 minus 9.5, what do we get? 3.5. So the ratio becomes 7:3.5 or 2:1. ठीक है? Now अब हमारा ratio आ गया है. अब हम क्या करें? यहाँ हमें दिया गया है कि जो दूसरे टाइप का राइस है ये 20 रुपए किलो वाला, दैट इज यूज्ड इन 10 kg, मतलब उसका 10 किलो अमाउंट यूज किया है. रेशियो में उसका क्या आया है? 1, यानी 1 पार्ट कितना हो जाएगा आपका? 10 kg. हमसे पूछा क्या गया है कि इसका हम कितना राइस लें. इसका राइस रेशियो में कितना है? 2. तो जब 1 पार्ट इज 10 kg, 2 पार्ट कितना हो जाएगा? 20 kg. सो अगेन 20 kgs is your answer. ठीक है? कुछ नया नहीं किया है, सिंपली हमने रेशियो निकाला है. रेशियो के बाद बस एक एडिशनल स्टेप है जहां वी हैव सीन कि क्वांटिटी जो गिवन है उसको और रेशियो को हम इक्वेट कर ले, एक पार्ट की वैल्यू निकाल ले और फिर जितने पार्ट की वैल्यूज पूछी गई है वी कैन सिंपली फाइंड दैट आउट. अब दूसरे थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस वेयर इट सेज कि प्राइस पूछा गया है. Now let's say if two kinds of wheat, it costs 70 per kg, 110 per kg, and they are mixed in the ratio of 3:1, what shall be the resultant price? Okay. Now here, all right, if we write it like this, 70 हमने लिखा, 110 लिखा, mean price let's say अभी के लिए x है, तो ये क्या हो जाएगा? 110 minus x, ये x minus 70, 3:1, आप अपॉन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. ठीक है? That's the traditional way of doing it. However, how I would solve this question is I'll simply use the values given here because हमें सिर्फ subtraction करना है यहाँ पे, and that's really a quicker way to do than to solve पूरा whole equation x के form में. ठीक है? I'll tell you how. Let's start with 75 only. ठीक है? तो मैं यहाँ पे x की जगह मान लूँ 75 है, तो 75 और 70 का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5. और 75 और 110 का डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 25 plus 10 we get 35. ठीक है? तो रेशियो कितना हो गया हमारा? कैंसिल कर दो 5 से, तो we get 7:1. पूछा है 3:1, तो नहीं, this is not our answer. So I'll just erase, wait. So we checked 75 is not our answer. Now let's try with 80. ठीक है? So here we write 80 in place of x.
अगेन 70-80 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, 80 एंड 110 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 30। तो रेशियो कितना हो जाएगा 0 0 काट दो 3:1। योर रेशियो इज 3:1, क्वेश्चन में भी 3:1 है, सो द आंसर इज 80। नाउ अगेन लेट्स से इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन पे ही आंसर आ गया, बट हो सकता है इन सर्टेन सिचुएशंस इट द करेक्ट आंसर माइट बी ऑप्शन डी, तो आपको चारों सॉल्व करने पड़ेंगे। बट नहीं, द करेक्ट वे इन दीज सिचुएशंस इज कि जैसे इसमें 75, 80, 85, 90 दिया हुआ है, तो यू सिंपली स्टार्ट इनमें से कहीं बीच से। लेट्स से मैं 80 या 85 से शुरू करती और फिर मुझे आंसर में थोड़ा ज्यादा आता या थोड़ा कम आता, एंड देन आई वुड हैव गेस कि नहीं इससे कम वाला होगा इससे ज्यादा वाला होगा। ठीक है, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर दैट आपको एग्जैक्ट आंसर फाइंड करने का वो बहुत ज्यादा जज्बा नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो एग्जैक्ट ढूंढ के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। यू जस्ट नीड टू फाइंड एन approximate answer and make an educated guess, make a calculated guess. That's all that you require for this exam. ठीक है, now moving on, a fourth kind of question under this only, those are the replacement ones. ठीक है, अब replacement के questions क्या होते हैं? replacement के questions होते हैं जहां पे ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ऐसे कुछ मिक्सचर दिया है, उसमें हमने थोड़ा मिक्सचर निकाला, फिर या तो पानी डाल दिया, जैसे मिल्क और वाटर का है तो हमने मिक्सचर निकाला उसमें पानी डाल दिया, या फिर और कोई सोल्यूशन। तो बेसिकली यू जस्ट टेक आउट थोड़ा सा लिक्विड एंड यू रिप्लेस इट विद द same amount of liquid or maybe different amount of liquid depending on the question. So those are the replacement questions. ठीक है, now let's try here this question. It says a vessel is full of mixture of milk and water in which there is 20% of milk. ठीक है, अब इसमें से 5 लीटर्स आर ड्रॉन ऑफ एंड द वेसल इज फिल्ड विथ वाटर। नाउ अगर मिल्क आया है 12%, फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी। नाउ अगेन इसमें हमें इनिशियल क्वांटिटी नहीं दी गई, ऑफ कोर्स वो तो पूछी गई है। सो व्हाट डू वी डू, we'll simply assume 100. let's start with 100 here. ठीक है, अब लेट्स से हमारा 100 था टोटल क्वांटिटी, तो मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है 20%, यानी मिल्क हो जाएगा 100 में कितना 20, वाटर कितना हो जाएगा 80। ठीक है, सो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया 2:8 या फिर 1:4। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो हमने निकाल लिया 1:4 है। अब जो ये 5 लीटर हमने निकाला है, सीधी सी बात है कि जो मिल्क और वाटर इस 5 लीटर में निकला होगा वो सेम रेशियो में निकला होगा। ठीक है, समझ रहे हो, जैसे मिल्क और वाटर का इकट्ठे सोल्यूशन था, उसमें से वी रिमूव 5 लीटर, तो उसमें जिस रेशियो में मिल्क और वाटर होगा उसी रेशियो में उतना मिल्क और उतना पानी निकल जाएगा। ठीक है, सो हियर जो रेशियो हमारे पास आ गया 1:4। अब हम देख लेते हैं कि 5 लीटर में हमारा कितना मिल्क और कितना पानी निकला है। तो मिल्क कितना निकला है 5 लीटर में 1/5। 1/5 हम क्यों लिया हमने, क्योंकि फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 + 1। तो मिल्क का दिस पार्ट बिकम्स 1/5 और है कितना 5 लीटर, सो 1 लीटर कम्स। ठीक है, 1 लीटर, यानी कि इन दिस 5 लीटर्स जो मिक्सचर हमने निकाला उसमें 1 लीटर वाज मिल्क एंड द रिमेनिंग वाज वाटर। दैट मीन्स 4 लीटर पानी एंड 1 लीटर मिल्क हैज बीन ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द वेसल। So we got 1 liter of milk निकल गया। Now again, in questions such as these, you also need to apply some logic. ऐसे ना कोई तिकड़म भिड़ा के you need to solve them and not like go on and on based on the formulas, forming equations, solving them. Answer निकल आएगा, no doubt. But then you'll end up losing a lot of time that you could have utilized elsewhere. ठीक है? So here if you see, like think logically, ठीक है? पहले इसमें मिल्क कितना था 20%, अभी मिल्क यहाँ पे कितना है 12%, तो मिल्क कितना लूज हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 8%। हाउ 20% - 12%, सो द इन परसेंटेज मिल्क कितना गया है हमारा 8%, और क्वांटिटी में अभी हमने निकाला कितना गया था 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर निकला था इस 5 लीटर में से, सो 8% इज इक्वल टू 1 लीटर्स हियर, व्हिच मींस 1% कितना हो जाएगा 1/8, और हमें निकालना कितना है 100%, क्योंकि क्वांटिटी कितनी थी 100,
So we'll simply multiply 1 by 8 by 100. And if you solve this, so this becomes 8 ones are 8, 8 twos are 16. So this becomes 12.5 liters. So 12.5 liters is your answer. So again, you see here, जैसे मैंने देखा कि अच्छा 20% पहले था, अब 12% यानी 8% बचा है, मतलब 8% हमने खोया है. So similarly, you need to find some logic, some hidden values, some technique in that question, and it's really easy to spot these. All right. So this was about these kind of questions, and I think we have come to the end of the presentation.